Hello young physics learner, welcome back to my class. This is class 12th physics and this is lecture number 9 under alternating current. The rest of the videos, rest 8 lectures are given in my playlist. You can go to the channel and search the playlist alternating current. You will get all the 8 lectures based on the previous topic of alternating current. This is given in series, as well as if you want to search any topic of class 12 physics, you can go to playlist and every topic from the electrostatics to alternating current, each and every topic is mentioned in playlist. So you can see the videos in series and in sequential modes. So here I want to start the next and the last topic. This one is the last lecture of alternating current, where I am going to discuss about transformer. And one more thing that I told you earlier, that I will draw all the circuit in one tabular form so that you may recall the broad topics, every topic of this chapter in very concise form in a table. Okay, so we will discuss the circuits in tabular form. This one is important for you to recall every topic in one page. Okay, so let's start with the circuits. First of all, we will write down the heading. You can draw along with me. Okay, first one is circuit. Circuit, in short, it is mentioned as CKT. Afterward, you can write the current value I, voltage value V, resistance. I have written resistance not with the R because there are different values of resistance in different kind of circuit. Then average power, it is represented by this sign. I mentioned it earlier. All these topics are discussed in detail, so you can go through with that. And afterward, that leading and lagging. Leading oblique lagging. So here leading and lagging are not the simultaneous process. Either the current is leading or the voltage is leading, or we can say it as either the current is lagging or voltage is lagging. Clear? So we have discussed about the 7 kind of circuit. First one is R circuit. R means what? Only resistance is present in the circuit and it is connected with the AC mains. This one is simple R circuit representation, and this is AC mains. AC mains voltage is given as V is equal to V naught sine omega t. Now from where it comes? It comes from the previous chapter, electromagnetic induction, the last topic of electromagnetic induction, that was generator, AC generator. So this topic would be clear to you under the topic, under the heading, that is AC generator, and it is given in the electromagnetic induction chapter. You can go through with that playlist, electromagnetic induction. There are so many videos in sequence and as per the syllabus and topics given in NCERT book. So you can go through with that and you can observe what is given there. You can learn what is given there in this topic. Clear? So V is equal to V naught sine omega t. Clear? Now this one is R. Now what is the value of I and V in R? The V value is V is equal to V naught sine omega t. ठीक है, ये सारा आप पढ़ चुके हो पूरी डिटेल फॉर्म में. उसका कंसाइज निकाल रहे हैं हम, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट. I is equal to I naught sine omega t. Got it? That means V and I both are in same phase. Okay. Now what is the value of resistance here? Resistance R, that is equal to V over I. Simple. Clear? So you will get the value of resistance as V naught over I naught. The peak values here, V naught is the peak value of voltage, I naught is the peak value of current. So we will get the maximum value of resistance here, because sine omega t terms may cancel out, and afterward come to the power value. So power, average power here, the value of average power is V naught I naught over 2, means the peak power value, peak power कितनी होनी चाहिए? V naught I naught, उसका हाफ कर देंगे.
तो वो एवरेज पावर आ जाती है। दिस इज़ द पावर इन द रेजिस्टेंस सर्किट। क्लियर। अब ये जो वैल्यू होती है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं V0/√2 इंटू I0/√2। नाउ क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें VRMS और IRMS के फॉर्म में मिल जाएगा। V0/√2 को हम कहेंगे VRMS, I0/√2 को कहेंगे IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एवरेज पावर की वैल्यू होती है VRMS इंटू IRMS। क्लियर। ये मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो साथ में अगर आपकी टेबल में स्पेस है, ओके। अदरवाइज आप इस फॉर्म में लिख लो। नेक्स्ट है लीडिंग एंड लैगिंग। देयर इज़ नो लीडिंग। लीडिंग एंड लैगिंग जनरली किस में होती है? I और V में होती है। अगर आप इसका फेज़र डायग्राम बनाओगे, मैं यहाँ पे साथ में फेज़र बनाती जाऊँगी ताकि आपको लीडिंग लैगिंग फेज़र से क्लियर हो जाए। फेज़र में y एक्सिस वैल्यू और x एक्सिस वैल्यू पे कोई टर्म्स नहीं यूज़ करते हैं। एंड इफ़ यू आर पुटिंग V here over the x axis, then I should also be over the x axis. So V and I both are in the same axis. अगर आप फेज़र ऐसे नहीं बना रहे हो तो दूसरा वे बताती हूँ। ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज ओमेगा टी। सो इफ वी हियर इज एट ओमेगा टी एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन आई वेक्टर इज ऑल्सो एट द ओमेगा टी एंगल from the horizontal line. So this is also a phasor for our circuit. Clear? So there is no leading or oblique, we can write it lagging. लैगिंग मीन्स होता है पीछे चलना और लीडिंग मीन्स है आगे चलना। तो जहाँ वोल्टेज आगे चल रहा है, कितने एंगल पे आगे चल रहा है, वो π/2 निकल करके आता है, फाई एंगल निकल के आता है। तो किसी एंगल पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे हम इसे लीडिंग और लैगिंग का केस देते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि दोनों का आप देख रहे हो कि वैल्यू सेम है, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में है, इसलिए यहाँ पर कोई लीडिंग और लैगिंग नहीं है। दैट मीन्स करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। ओके, इसको दूसरे सेंस में क्या कह सकते हैं? दैट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, दे आर नॉट लीडिंग और लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। गॉट माई पॉइंट? नाउ सेकेंड सर्किट इज L circuit. L means coil circuit. So if you are drawing a coil along with the AC mains, then it is called L circuit. This one is the coil having the self inductance L. अब ये जो self inductance topic है, again it is given in electromagnetic induction chapter. Again you have to go to my channel and you have to see electromagnetic induction playlist. आप playlist में जाएंगे, playlist में आपको topic मिल जाएंगे चैप्टर क्लास 12th फिज़िक्स, एंड आप उसमें देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप हेडिंग वाइज, और एक सीक्वेंस है वीडियो का, उस सीक्वेंस में ही आप वीडियो देख करके उस चैप्टर को पूरा रिव्यू कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइम पढ़े उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। सो दैट इज़ माई पर्पस, दैट यू गेट द each and every topic of NCERT book in sequence, and that is only the sequence in state board book too. चाहे आप नूतन फिज़िक्स पढ़े हो ISC बोर्ड में, या आप स्टेट बोर्ड में ABC नूतन फिज़िक्स या कोई भी रेफरेंस बुक पढ़े हो, आपको वो जो टॉपिक NCERT में सीक्वेंस में, सेम सीक्वेंस में आपको रेफरेंस बुक में भी मिलते हैं। क्लियर? तो आपका ये L सर्किट है। अब इस L सर्किट में, ये इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, रिमेंबर दिस। L सर्किट में जो V है, क्योंकि वोल्टेज हम इसी मीन्स का सेम रख रहे हैं, सो V इज़ V0 साइन ओमेगा टी, सेम थिंग, यू कैन राइट इट हियर। आफ्टरवर्ड जो करंट होती है दैट लैग बिहाइंड द वोल्टेज इन L सर्किट, रिमेंबर दिस, करंट लैग बिहाइंड, दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से दैट वोल्टेज लीड ओवर द करंट। तो करंट लैग कर रही है किससे? वोल्टेज से। कितने एंगल लैग कर रही होती है? π/2। तो ओमेगा टी माइनस π/2 हम यहाँ लिख सकते हैं। ये लैगिंग हो गया, माइनस है यानी कि π/2 डिग्री पीछे है। क्लियर? तो दिस वन इज द करेंट वैल्यू। आफ्टरवर्ड when you will discuss about the resistance, then in L circuit resistance, it is not called resistance, the word is here inductive reactance. This is called inductive reactance and the representation is XL and the value here it is omega L, यानी ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 2 pi nu, or you can write it as
2 pi by t, where capital T is the time period and nu is the frequency. Question बहुत बनते हैं, numericals बहुत बनते हैं इसमें. You have to go through with this, and you must know that in L circuit there must be no resistance. It is inductive reactance, though it is equivalent to resistance. The unit of inductive reactance is ohm, same as the unit of resistance, but you will get this formula as XL is equal to omega L. Clear? L is self-inductance. Now if you will find the average power in L circuit is 0. Afterward, leading and lagging, if you are going to discuss about this, you will go through with this formula and you can draw the phasor here. So if the voltage here it is given by omega t, this is omega t and this one is voltage, then current is lagging behind the voltage. So current direction, current vector should be at pi by 2 lagging behind the voltage. Got my point? This one is the phasor diagram. Y-axis and x-axis you will not put any value because it is the angular displacement, or it is also called the rotatory vectors. So you don't need to write the x or y-axis value. You will only represent the angular displacement in the form of omega t, in the form of pi by 2, in the form of pi. Okay, so we will write in this manner, and this is the phase difference between voltage and current. Current is in 4th quadrant when the voltage is in 1st quadrant. That means what? Current lag behind the voltage. Got my point? So this one is L circuit, and the important features are average power is 0. The XL value is omega L. It is not resistance, it is reactance. Value of this one formula you must know. So this is the important feature, and the current lag. इसको आप दूसरे सेंस में अगर लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे that voltage lead over the current. This is also same as the statement given here. So come to the next one, that is C circuit. So C circuit means, C means capacitor. So only capacitor that the parallel plate we will draw here. This one is AC mains, and we always put the voltage of AC mains as sin omega t because we have to do derivation, we have to prove some formula. So that is why we always use V is equal to V naught sin omega t. This one is the capacitance of the capacitor, capacitance C epsilon naught A divided by D. ये फॉर्मूला आपने कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ा. अब ये चैप्टर कहाँ था? ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में है. दिस वन इज़ द यूनिट नंबर 2, उसका भी आपका प्लेलिस्ट है, उसको गो थ्रू होइए. और आपको अगर डिटेल नहीं याद है उसकी तो उसको डिटेल अच्छे से रिव्यू कीजिए. तो आप जब पिछला आपको पता होगा तभी आप आगे रिव्यू कर पाओगे, टॉपिक्स को समझ पाओगे. सो पिछला भूल गए होगा तो रिवाइज करो, नहीं आता है तब भी आपको एक बार गो थ्रू होना होगा. एक बार क्या, आपको 2 टाइम्स गो थ्रू होना होगा. नाउ दिस वन इज़ द अक्टूबर मंथ. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड just make your target till November month. Your syllabus must be finished. I will finish my syllabus till November month in online classes. I will finish that syllabus, but the December month and January month must be kept for only and only revision and practice paper. Okay, then only you are going to face the board examination. So put pressure at this time over yourself and face the board examination confidently. So here this one is the C circuit. Now voltage we will write in the same manner. V is equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught. Now here in this circuit, remember this, current leads over the voltage. That means I naught sin omega t plus pi by 2. If it is omega t, it will be plus pi by 2. Here it is minus pi by 2. So current formula should be this one with respect to voltage formula, and here the resistance is called capacitive reactance. The unit is same, ohm. For this unit is same, ohm. Unit for resistance is ohm. So every time the unit will be same as resistance, that is why it is equivalent to resistance, and the formula for XC is equal to 1 over omega C. Remember this, omega L, XL, and XC is 1 over omega C. Omega is what? It is angular frequency and C is capacitance. So again many questions may be formed from
this formula and you will get easily the result by putting the formula and the values. Got it? Now this one is the capacitive reactance. The average power in the C circuit, again it is 0. Average power 0 होती है. Remember this, I am talking about the average power. Got my point? Average power 0 होती है. अब यहाँ पे फेज़र अगर हम बनाते हैं, then फेज़र current lead कर रही है. So if voltage is this one omega t, this one is the voltage vector making omega t angle from the x-axis, then you can only draw the current by the 90 degree from this V vector. So this is current vector, pi by 2 it is leading. So current, you can write it as current leads over voltage. This one is voltage, okay. So this one is the conclusion for C circuit. These are the important factors. These three circuits are written over the board, and now I will come to the next three circuit, that is LR, CR, LCR. So ये हैं आपके LR, CR एंड LCR सर्किट. कुछ नहीं है, अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो उसी के रिस्पेक्ट में ये सर्किट्स चलते हैं. और जब आप इन सर्किट्स को लगाओगे, डेरिवेशंस करोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा. और ये बहुत बेसिक है. जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो इससे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलेंगे, लेकिन उनका बेस ये सर्किट्स होंगे. तो इम्पॉर्टेंट आगे के लिए भी हो जाता है, अभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंटरेस्टिंग आपको लगने लगेगा. सो दैट इज़ वाई गो थ्रू विद दिस, write it, solve it by your own and you will get it. Okay, so here LR, if you are going to LR, then again I told it that V should always be the same in all circuits. Here again V is equal to V naught sine omega t. Here V is equal to V naught sine omega t. Clear? Now come to the I. What will happen, that you can solve these kind of circuit on the basis of phasor diagram. It is mentioned earlier. L and R. Here in R circuit, resistance, that means resistance circuit, the current and the voltage both are in same phase. But in L circuit the voltage leads. अब एक सिंपल सी चीज़ देखो कि एक ये सर्किट है जिसमें करंट और वोल्टेज एक ही फेज़ में है, और दूसरे सर्किट जो है वो डोमिनेट कर रहा है जिसमें वोल्टेज लीड कर रहा है. LR सर्किट है, L है तो वोल्टेज लीड कर रहा है. तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो इन दोनों वोल्टेज के बीच में आएगा. यहाँ पर आप फेज़र पहले मैं बना देती हूँ, वो क्लियर करेगा इसे, कि अगर आप VR वोल्टेज देखोगे यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो कौन सा होगा. आपने जैसे सिंपल सर्किट सॉल्व किए हैं तो VR वोल्टेज कौन सा है, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और VL वोल्टेज कौन सा है, जो कि इंडक्टर के अक्रॉस है. तो अगर आप ले रहे हो तो VR और I ये तो एक ही फेज़ में, लेकिन जो L का वोल्टेज है वो I से 90 डिग्री लीड कर रहा है. अभी आपने L सर्किट पढ़ा था, वोल्टेज लीड कर रहा होता है, तो L का जो आएगा वोल्टेज वो तो इधर आ जाएगा. अब अगर दो वेक्टर सेम काइंड वेक्टर VL एंड VR, इनको आप देखोगे तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, बाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. तो इनका रिजल्टेंट तो यहाँ पर आएगा कहीं. ये है रिजल्टेंट वेक्टर V रिजल्टेंट विच शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर. यही आना चाहिए. समझ रहे हो ना, जो आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा. तो यहाँ पर अगर रिजल्टेंट वोल्टेज को देखो तो रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से आगे है, पहले है. इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रही है. किसमें, LR सर्किट में. और होना भी ऐसे ही चाहिए. डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, क्योंकि R सर्किट के लिए तो दोनों सेम में जा रहे हैं, सेम फेज़ में, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर L सर्किट के रिस्पेक्ट में आएगा जिसमें वोल्टेज लीड कर रहा है. सो वी विल राइट हियर दैट करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय विच एंगल, दिस एंगल इज फाई. और वो एंगल हम निकाल सकते हैं. दिस फाई एंगल शुड बी व्हाट, tan फाई ऐसे लिखोगे. सो tan फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स VL ओवर बेस, दैट इज VR. VL की मीन्स क्या होता है, VL इज I, करंट तो सेम जा रही, सीरीज कॉम्बिनेशन है, I XL, और VR क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा. I एंड I कैंसिल, दैट मीन्स XL ओवर R. तो जो आपका फेज़, कितने फेज़ आगे है वोल्टेज लीड कर रहा है, वो आपको इस फॉर्मूले के थ्रू पता चल सकता है. आ रही बात समझ में. फाई की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से निकल करके आ जाएगी, जहाँ पर XL और R आपके लिए नोन होंगे. सो हियर वी कैन से दैट I इज़ लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फाई एंगल. सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू I नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस फाई, लैगिंग के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, एंड कितने एंगल, फाई एंगल, वेयर द फाई वैल्यू इज दिस वन। तो यहाँ पे हमें फेजर से सॉल्व करना है, इसलिए हम ऐसे इस तरीके की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब रेजिस्टेंस की बात आती है, तो यहाँ रेजिस्टेंस को LR हो CR हो, जहाँ कॉम्बिनेशन सर्किट आते हैं वहाँ पर रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस भी नहीं कहते, उनको कहते हैं इम्पीडेंस, एंड द रिप्रेजेंटेशन इज Z। ओके, अगेन द यूनिट इज सेम, unit for impedance is ohm, same as the unit for resistance, same as the unit for reactance, but the formula is changed. Here the formula for Z is equal to under root of XL square plus R square. जो रेजिस्टेंस L यानी कॉइल के अक्रॉस है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपको नेट इम्पीडेंस मिलेगा फॉर कोरस्पॉन्डिंग सर्किट ऑफ LR। गॉट माई पॉइंट। तो ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को इसी तरीके से निकालेंगे। अब आ जाते हैं एवरेज पावर में। देखो आपकी L सर्किट में तो एवरेज पावर 0 होती है। अगर एवरेज पावर का आप अलजेब्रिक सम देखो तो यहाँ पर LR सर्किट की एवरेज पावर क्या होनी चाहिए, LR के लिए ये होनी चाहिए एवरेज पावर फॉर L प्लस एवरेज पावर फॉर R, ऐसे होनी चाहिए। क्लियर है क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पावर एडिटिव क्वांटिटी है। कैसे एडिटिव क्वांटिटी है? आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है लाइट में भी, जहाँ पर आप पावर ऑफ लेंसेज निकालते थे। 10th क्लास कुछ रिकॉल करो, 10th क्लास में आपने जब पावर निकाल रहे थे तो पावर हमेशा एडिटिव क्वांटिटी होती है। गॉट माई पॉइंट? पावर इज़ एडिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं सर्किट में, तो दिस इज़ अगेन एन एडिटिव क्वांटिटी। अगर एडिटिव क्वांटिटी है तो आपको पता है कि L सर्किट की एवरेज पावर 0 होती है, आपने पहले सॉल्व किया है। एवरी टॉपिक इज़ इंटरलिंक्ड, जो पहले सॉल्व किया है उसको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो L सर्किट की एवरेज पावर 0 हो गई और R सर्किट की एवरेज पावर होती है P0/2, पीक पावर की हाफ, जो आपने पहले निकाली थी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ IRMS। जो बच्चे समझ रहे होंगे उनको आ रहा होगा बात कि अभी मैंने IRMS और VRMS बताया था, जिसकी वैल्यू क्या होती है V0/√2 एंड I0/√2। ठीक है, तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, जितना भी आपको बता दिया जाए कोई भी टीचर बताएगा, बट अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो V0/√2 I0/√2 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर फॉर LR। गॉट माई पॉइंट? That means it is same as the average power for R circuit. Okay, क्लियर है? अब फेज डायग्राम मैंने बना दिया और इसमें मैंने आपको बताया भी कि करंट लैग कर रही है बिकॉज ऑफ द L डोमिनेटिंग फैक्टर। विच इज डोमिनेटिंग फैक्टर? L। नाउ इन द सेम मैनर इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द CR, तो होना क्या चाहिए? सबसे पहले फेजर पे चले जाते हैं। फेजर डायग्राम में आप अगर CR का बनाते हो तो CR के लिए सबसे पहले R का बनाओ। तो R के लिए I and VR both are in same phase, but the voltage across the C circuit that should lag behind the current by pi/2। तो करंट से pi/2 पीछे ले गए 90। ओके, अब ये नीचे आ गया तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये आ गया जो कि करंट से नीचे है। कितने एंगल? 5 एंगल। सेम पैटर्न हम अडॉप्ट करें, यहाँ पे करंट से आगे था या करंट से पीछे, दैट मीन्स वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। यहाँ पे क्या था? करंट लैग्स बिहाइंड, I लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। ये स्टेटमेंट है किसके लिए? LR सर्किट के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, I, करंट मीन्स I। तो आपका ये CR सर्किट का आ गया, समझ में आ रहा है? अब CR सर्किट में वोल्टेज लैग कर रहा है, कितने एंगल लैग कर रहा है? 5 एंगल। और उस 5 की वैल्यू को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ tan phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स VC/VR। सो tan phi दैट इज इक्वल टू VC/VR विच इज़ इक्वल टू XC/R। XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो आ जाएगा फॉर्मूला 1/ωcR। ठीक है, ये यहाँ पर आगे लिख लेना आप लोग। तो आपका यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है? लैग कर रहा है। क्लियर है? अब बाकी फैक्टर्स निकाल लो। वोल्टेज लैग कर रहा है तो करंट लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है तो प्लस साइन आ जाएगा, sin ωt प्लस फाई। और फाई की वैल्यू
आप उस tan phi फॉर्मूले से निकाल सकते हो. सो दिस वन इज द करंट वैल्यू विच इज लीडिंग इन CR सर्किट. Afterward, impedance again here in this circuit is under root of XC square plus R square, same as the previous case, but XC value is 1 over omega C, remember this. And come to the power, again in the same pattern if you will solve the power, so power will come as P naught by 2 because the power, average power in C circuit is 0, similar as the average power in L circuit. So we'll get the average power same as the एवरेज पावर इन आर सर्किट. तो पावर के केस में आपका रेजिस्टेंस डोमिनेटिंग हो जाता है, जबकि आपका ये जो आप फेजर डायग्राम निकाल रहे हो, लीडिंग और लैगिंग निकाल रहे हो, उसमें आपका सी या एल के बेसिस पर ही लीडिंग और लैगिंग पता चलती है, क्योंकि आर न्यूट्रल है. आर सर्किट में वी और आई सेम फेज में, तो जो लीडिंग और लैगिंग है वो हमें एल या तो सी से पता चलेगी. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सिंपल कॉन्सेप्ट था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. अब आ जाते हैं LCR सर्किट में. LCR का आप ये देख लो कि दो टाइप की कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, LCR इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ नॉट इन योर कोर्स. सीरीज़ कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको करवाया था, आपका आई थिंक इट इज़ लेक्चर नंबर 8, लास्ट लेक्चर था मेरा. तो इसमें आपने LCR सर्किट में जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आप देख लो कि वोल्टेज आ रहा है दिस वन. इसमें फिर से आप फेजर डायग्राम बनाओगे LCR के लिए, और फेजर डायग्राम के लिए मुझे मैं ये रब कर देती हूँ, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा. अब मैं LCR के लिए बनाने जा रही हूँ. तो LCR में अब देखो क्या क्या होता है फैक्टर्स. सबसे पहले I और VR को हमने एक ही फेज़ में रखा. अगर हम L का देखते हैं तो L का वोल्टेज लीड कर रहा होता है तो VL ऊपर आएगा, और C का वोल्टेज लैग कर रहा होता है तो VC नीचे जाएगा. ठीक है. अगर हमें रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है तो इसमें 3 कंडीशन आती हैं कि आप यहाँ पर देखोगे कि VC जो है वो अगर कम है तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर की साइड आएगा. तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि VC इज़ लेस देन VL. एक केस, किसी एक केस को हम कंसीडर कर रहे हैं. तो आपका जो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर, क्योंकि ऑपोजिट हैं, पाई इन दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का. ये 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 180 मीन्स पाई. यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया VL माइनस ऑफ VC. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसको हम VR के रिस्पेक्ट में लेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर आ जाएगा. दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर V विच इज़ फाई एंगल लीडिंग ओवर द करेंट. ये किस केस में है? जब VC लेस देन VL है. यानी LCR में फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं कि अगर C डोमिनेटिंग है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नीचे की साइड आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में. क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर वेक्टर होगा, C डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो इसका मतलब वोल्टेज भी डोमिनेटिंग हो जाएगा C के अक्रॉस. जब ये डोमिनेटिंग होगा तो रिजल्टेंट इन दोनों का नीचे आएगा, यानी VC माइनस VL नीचे की साइड आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर नीचे जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर करंट से लैग कर रहा होगा. दैट मीन्स अगर C सर्किट है तो रिजल्टेंट वेक्टर वोल्टेज वेक्टर लैग कर रहा है करंट से, यानी C डोमिनेटिंग सर्किट हो जाएगा. अगर L डोमिनेटिंग है, VL डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पर L सर्किट के इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फैक्टर्स आएंगे, यानी कि वोल्टेज लीड कर रहा होगा फाई एंगल करंट से. अगर दोनों इक्वल हैं तो इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा माइनस करने पर, तब ये कम्प्लीटली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा. ठीक है. तो LCR में केसेस होते हैं 3 केसेस, जिनमें से हम सिर्फ एक केस को ले लेते हैं. कंडीशन है कि VL इज़ ग्रेटर देन VC, एक कंडीशन. ठीक है. अब बात आ रही समझ में. इसमें हम 3 केसेस लेते थे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं. तो हमने अगर एक केस लिया है दैट VL इज़ ग्रेटर देन VC, इस सिचुएशन में क्या होगा कि करंट क्या होगी? लैग कर रही होगी. नीचे है करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज ऊपर है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रही है. यहाँ पर I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई आ जाएगा. अब ये जो फाई है इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो फाई की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी. यहाँ मैं ऊपर की साइड लिख रही हूँ, आप लोग इसी के नीचे लिखना. tan phi that is equal to the y axis value which is equal to VL minus VC divided by the x axis value that is VR. यही होगा. अब देखो इसमें क्या होगा कि इसको I, क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इससे डिफरेंस आ जाता है. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है. यहाँ पर L के अक्रॉस जो करंट है सेम करंट इज़ अक्रॉस C, सेम करंट इज़ अक्रॉस R. तो करंट सेम है, इसलिए यहाँ पर I XL
माइनस XC रख देंगे डिवाइडेड बाई IR। ठीक है, करंट सेम है तीनों में, तो डिफरेंस जो tan phi की वैल्यू कितनी आ रही, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ये वैल्यू आ रही, जबकि पहले में देखिए चेंज था। तो XL और XC पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे phi कितना आ रहा होगा, तो phi यहाँ से निकालेंगे और हम यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये अगर ये कौन सा केस है, जब VL ग्रेटर देन VC है। अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि VL इज़ लेस देन VC, तो करंट लीड करेगी, ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। तो ये दो केसेस हैं जो मेन है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो गई VL और VC की, तो यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस, फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय प्योरली रेजिस्टिव वैल्यू हो जाएगी, ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। तो वो 3 केसेस को हमें यहाँ लेना होता है। हमने फ़िलहाल ये 2 केसेस यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप उसको चेक कर सकते हो कि अपनी पहले डायरी में लिख लो अपने नोट कॉपी में। उसके बाद आप क्या करोगे कि जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़े होगे तो यही रिजल्ट्स जो हैं वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर अभी नहीं यहाँ पर क्लियर हो रहा है तो उसको एक बार को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख लो। ठीक है, Z दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL, यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी, XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इम्पीडेंस LCR सर्किट के लिए आता है। ठीक है, और एवरेज पावर की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि पावर के केस में L का और C का कोई रोल नहीं रहता है, तो किसका रोल रहेगा, सिर्फ R का रहेगा। यानी पावर, एवरेज पावर जो आएगी वो रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस आएगी P0/2। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपके बेसिक जो L, C एंड R सर्किट थे वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके सारे रिजल्टेंट फैक्टर्स आते जाएंगे। अब चेंजेस यहाँ पर अगर ये सिचुएशन फॉलो हो रही है तो उस केस में चेंज क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर बना था वो रिजल्टेंट वोल्टेज एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा। ठीक है, इतना डिफरेंस आएगा। तो दिस वन इज़ द LCR सर्किट। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। क्लियर है ये? तो ये आपके 6 सर्किट हो चुके हैं जिसमें आपने डिफरेंट वैल्यूज़ देखी डिफरेंट सर्किट्स के लिए। अब एक लास्ट सर्किट है जिसे हम ट्यूनिंग सर्किट कहते हैं, उसकी सिचुएशन देख लो। LC सर्किट। ठीक है, दिस इज द 7th सर्किट, LC सर्किट, जिसे हम LC ऑसिलेटर भी कहते हैं, जहाँ पर R का कोई रोल नहीं रहता, केवल L और C लगे हुए होते हैं। ये AC मेंस है, दिस वन इज C, दिस वन इज L, AC मेंस, एंड दिस वन इज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T। ठीक है, अब LC सर्किट में देखो तो वोल्टेज तो हमने सिंपली पहले तो बेस ही लिया हुआ है, तो ये V इज इक्वल टू हो जाएगा V0 साइन ओमेगा T। ठीक है, क्लियर है? ये आती है बात कि I क्या होगा। तो I की वैल्यू को चेक करने के लिए फेज़र पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर डायग्राम बनाया, करंट अगर हम एक्स एक्सिस के अराउंड लेते हैं तो वोल्टेज ऑफ L सर्किट इसके ऊपर होगा, करंट के से लीड कर रहा होगा π/2, और वोल्टेज अक्रॉस C सर्किट करंट से लैग कर रहा है π/2। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ दीज टू वैल्यू, अपोजिट वेक्टर हो गए। वेक्टर पूरा का पूरा वेक्टर एडिशन यहाँ पर फॉलो होता है। तो लॉ ऑफ वेक्टर आपने पढ़े हैं, 3 लॉज होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। तो यहाँ पर आपके सिंपल 2 अपोजिट वेक्टर है तो आप एडिशन कर सकते हो सिंपल। तो यहाँ एडिशन क्या माइनस हो रहा होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बात? तो डिफरेंस ऑफ द 2 वोल्टेज आता है, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो VL माइनस VC आएगा। ठीक है, इसमें भी सिचुएशन हो गई, अगर VL VC से ग्रेटर है तो डिफरेंस ऑफ द 2 वोल्टेज आएगा VL माइनस ऑफ VC। अगर VL VC से लेस है तो डिफरेंस ऑफ द 2 वोल्टेज VC माइनस VL आएगा। समझ रहे हो, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग्स में रिजल्टेंट वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो आपका करंट का जो फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि वोल्टेज कौन सा लीड कर रहा है। यहाँ 2 वोल्टेज, एक आपका L सर्किट के अक्रॉस जो है वो VL है और जो C सर्किट के अक्रॉस है वो है VC। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब अगर L सर्किट के वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, किस पर डिपेंड कर रही होगी, करंट तो दोनों में सेम जा रही है, डिपेंड कर रही है XL या XC पर। V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, IXL एंड IXC।
तो अगर एक्सएल बड़ा हो जाता है तो वीएल बड़ा हो जाएगा, एक्सएल छोटा हो जाता है वैल्यू तो वीएल भी छोटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना। वीएल दैट इज़, यहाँ चलो करंट में नहीं लिखते, वीएल की वैल्यू होनी चाहिए आई एक्सएल और वीसी की वैल्यू होनी चाहिए आई एक्ससी। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल और एक्ससी की वैल्यू ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। अब देखो यहाँ पर ओमेगा तो सेम है क्योंकि यहाँ पर एसी में से सेम सप्लाई आ रही है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो एल यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर जाता है फैक्टर कि हम कौन सा रिएक्टेंस, कौन सा हम इंडक्टेंस ले रहे हैं, कौन सा इंडक्टर कॉइल यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सी कैपेसिटर प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके वोल्टेज की वैल्यूज़ कैसी आएंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि VL ग्रेटर है यानी VL माइनस VC, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर आएगा यानी VL माइनस VC ऊपर की साइड आएगा। तब आपको जब यहाँ डिफरेंस आप देखोगे तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, किस पे, 90 डिग्री पर। ठीक है, उस सिचुएशन में। और अगर आप सेकेंड सिचुएशन लेते हो कि VC डोमिनेटिंग है तो रिजल्टेंट नीचे की साइड आ जाएगा VC माइनस ऑफ VL, तो उस केस में करंट लीड करेगी वोल्टेज से। तो इसमें भी दो सिचुएशन हो गई। ये रेजोनेंस सर्किट है, ये एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इसीलिए इसमें रेजोनेंस आता है यानी ऑसिलेशन होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र फ्रॉम द इंडक्टर कॉइल टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर। तो ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म होता है, एक टाइम पीरियड में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। वो डिटेल पढ़ना आपको समझ में आएगा। जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक सीक्वेंशियल टाइम पीरियड में हो रहा होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड में हो रहा होता है, सो दैट इज़ corresponding to the oscillation. So this LC circuit is called the oscillation circuit and it is used for the radio tuning. तो आपके जो I है ये दो केसेस पे डिपेंड करती है। If VL is greater than VC, ये सिचुएशन आई तो करंट लैग करेगी यानी I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी इट इज़ द डोमिनेटिंग L सर्किट। अगर ये सिचुएशन है दैट VC इज़ ग्रेटर देन VL, देन I लीड करेगी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लीड करेगी। यहाँ फाई नहीं आ रहा है, π/2 आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका रिजल्टेंट या तो प्लस फाई एक्सिस में या तो माइनस फाई एक्सिस में और करंट से वो 90 डिग्री कवर है। ठीक है, तो ये आपकी करंट की वैल्यूज़ हो गई। रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो रेजिस्टेंस को हम यहाँ फिर से इम्पीडेंस कहते हैं, नॉट रिएक्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस। सो दिस वन शुड बी इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाती है इम्पीडेंस की। क्लियर है। नाउ एवरेज पावर की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि L में अगर आप एवरेज पावर LC की निकालोगे तो क्या होनी चाहिए, दे शुड बी एवरेज पावर corresponding to L प्लस एवरेज पावर corresponding to C and both are 0, so resultant average power for the LC circuit is 0 0 0. Clear? So this one is LC circuit and these are all the 7 circuit that I described you earlier and these are given in the tabular form. आपने बना लिए होंगे अभी और जल्दी से इसको रिवाइज कर लेना और आपके समझिए टिप पॉइंट पर आ जाएगा। आप 1 2 3 4 करके काउंट करके बता सकते हो किस में पावर कितनी है, किस में इम्पीडेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, किस में वोल्टेज लीड कर रहा है, किस में वोल्टेज लैग कर रहा है। सो दैट वाज माय पर्पस टू सिंप्लीफाइड ऑल द काइंड ऑफ सर्किट एंड टू मेक ऑल द सर्किट्स इन वन पेज। तो वन पेज में आ गया होगा, आपकी नोट कॉपी बड़ी होती है। ठीक है, चलो तो ये आपका सर्किट टेबुलर फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट मुझे एक टॉपिक और कराना है, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा डिटेल में नहीं है और लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसफार्मर सुना हुआ है, कहीं देखा हुआ है, घर के आसपास या रोड पे कहीं लगा हुआ, रोड के साइड में कॉर्नर्स में या किसी मार्केट प्लेस के पास कहीं लगा हुआ देखा है आपने, होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती, कई बार आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो गया, ट्रांसफार्मर फूक गया, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, इस तरीके की वर्डिंग्स कई बार आपने सुनी है, आप खुद यूज़ करते रहते होगे। तो हो है क्या जो हम ट्रांसफार्मर को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एक्चुअली ट्रांसफार्मर होता क्या है कि जो पावर सप्लाई आ रही होती है ना, वो पावर स्टेशन से आ रही होती है। एक पावर स्टेशन है जहाँ पर पावर जनरेट होती है, उसे हम पावर स्टेशन कहते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज्ड पावर स्टेशन है वो थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है,
तो जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं या विंड पावर स्टेशंस होते हैं या न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं और भी हैं जनरेशन, हम पावर का जनरेशन बहुत सारे रिसोर्सेज से कर सकते हैं। आपको एक रिकॉल करा देती हूँ, आपके फिज़िक्स में ही क्लास 10th में एक टॉपिक था सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उस सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एनर्जी थी क्या, किसका जनरेशन हम अल्टीमेटली कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो करेंट का जनरेशन हो रहा होता है कहाँ पर, पावर स्टेशन में, ठीक है। अब जो करंट जनरेट हो रही है वो इतनी हाई पावर की होती है, इतनी हाई वोल्टेज की होती है कि अगर वो घर में डायरेक्टली आ जाए ना तो हमारी डिवाइस वर्क ही नहीं कर पाएंगी। इतनी हाई पावर की है कि वो सारी की सारी डिवाइस एक साथ बर्स्ट कर जाएंगी, ठीक है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो कि अगर हम डैम ना बनाए तो पानी का फ्लो इतना है कि वो पानी तो सबको फ्लड में बहा ले जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो पावर जनरेट हुई उसमें क्या है, इतनी ज़्यादा पावर एनर्जी है, इतनी ज़्यादा वोल्टेज है उसमें कि वो वोल्टेज अगर घर में हो तो नॉर्मल पर्सन तो रह ही नहीं सकता घर में, उसको शॉक कभी भी लग सकता है। इलेक्ट्रिक स्विचेस काम नहीं कर पाएंगे, डिवाइसेस, स्मॉल डिवाइसेस काम नहीं कर पाएंगी। तो उस जो फ्लड आ रहा है ना, वो जो पावर का फ्लड आ रहा है, उस फ्लड को रोकने के लिए हमें बैरियर यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को एक तरीके से आप बैरियर कह सकते हो, जस्ट लाइक द ब्रिज। ये ब्रिजिंग कर रहा है किसके बीच में, कंज्यूमर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बीच में एक ब्रिज का वर्क कर रहा होता है। जो सप्लाई आती है उनके पास हाई वोल्टेज सप्लाई आ रही होती है, उस हाई वोल्टेज की सप्लाई को लो वोल्टेज की सप्लाई में कन्वर्ट करके आपको पावर घरों में दी जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का ब्रिज है। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, इट इज़ जस्ट लाइक द ब्रिज इन बिटवीन द हाई पावर सप्लाई एंड द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी सप्लाई की, हमारे घरों में, इंडिया में हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है पावर सप्लाई, दैट इज़ ऑफ 220 वोल्ट। 220 से लेकर के 240 मैक्सिमम इतने वोल्ट तक की पावर सप्लाई आनी चाहिए। और जबकि आती कितनी है, 2200, 22,000, इतनी पावर सप्लाई आ रही होती है। कई जगह पे ज़्यादा पावर सप्लाई ज़रूरी होती है, कई बार 2200 ज़रूरत होती है। कहाँ पर, फैक्ट्री एरिया में, प्रोडक्शन एरिया में, जहाँ हाई पावर चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर हमें हाई पावर चाहिए मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, तो वहाँ पर हाई पावर भी भेजी जाती है, उनका ज़्यादा चार्जेस लगता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो घरों के लिए डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 220 टू 240 वोल्ट। यानी वोल्टेज का अगर फ्लक्चुएशन भी हो तो मिनिमम वो 200 पे जाए, यानी इससे नीचे अगर आना है तो वोल्टेज नीचे, फ्लक्चुएशन समझ रहे हो ना, एसी में फ्लक्चुएशन का मीनिंग होता है ये वेव है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ आप देखोगे तो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर जो हम ले रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, जो पीक वैल्यू है, ये कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हमारी 220 तक जाए, ताकि पावर कट से पहले की, ज़ीरो से पहले की मिनिमम हमारी 220 तक, 200 तक जाए और मैक्सिमम हमारी 240 तक जाए। तो इसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं, यानी जितना गैप है, ठीक है। तो 200 मिनिमम होना चाहिए और 240 मैक्सिमम होना चाहिए। इससे नीचे, 200 से नीचे जाएगा तो पावर कट हो जाएगी। लो वोल्टेज में क्या है, कोई डिवाइस वर्क नहीं करेगी। 240 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस वोल्टेज तक लाने के लिए, पावर सप्लाई से इस वोल्टेज तक की वैल्यू को लाने के लिए हम जिस ब्रिज का यूज़ करते हैं, दैट ब्रिज इज़ ट्रांसफार्मर। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया। अब थोड़ा सा फिजिक्स वाली लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस, इज़ अ सेट ऑफ टू कॉइल्स known as primary and secondary coil to convert the high voltage AC to low voltage AC, okay, or to convert the low voltage AC to high voltage AC. That is the purpose of transformer. So it is a device, you can write this definition, to convert high voltage supply, ऑब्लिक लो वोल्टेज में लिख देती हूँ साथ ही साथ, टू लो वोल्टेज ऑब्लिक हाई वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। जहाँ हाई वोल्टेज आ रही होगी उसको लो वोल्टेज में करना है। एसी सप्लाई भी मैं साथ में लिख दे रही हूँ, एसी सप्लाई, एसी के लिए ही यूज़ करते हैं, डीसी के लिए हमें रिक्वायर्ड ही नहीं होती है।
तो एसी सप्लाई अगर हाई वोल्टेज की आ रही है तो उसको हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर लो वोल्टेज की आ रही है तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ स्टेट बोर्ड की बुक में जैसे नूतन में इस तरीके से दिया हुआ है कि हाई वोल्टेज लो करंट सप्लाई, जब भी हाई वोल्टेज होगा तो उसकी कोरस्पॉन्डेंस में करंट लो हो जाती है, तो हाई वोल्टेज लो करंट सप्लाई टू लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाई, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ हाई वोल्टेज है उसको कन्वर्ट करना होगा लो वोल्टेज में, और जहाँ लो वोल्टेज है उसको कन्वर्ट करना होगा हाई वोल्टेज में। जैसे कि अगर सप्लाई आ रही है लार्ज अमाउंट में तो ट्रांसफार्मर में उसको लो पावर सप्लाई में कन्वर्ट किया गया, लेकिन वहीं साथ में एक फैक्ट्री लगी है तो फैक्ट्री के लिए फिर से एक ट्रांसफार्मर लगेगा जिसके लिए वहाँ पर लो सप्लाई को फिर से हाई सप्लाई में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये पर्पज़ होता है ट्रांसफार्मर का। तो टेक्निकल डेफिनेशन ये है, बेसिक डेफिनेशन उसको हम ब्रिज के तरीके से लेते हैं कि आपको ब्रिज बना करके एक फ्लड ऑफ सप्लाई को रोकना है और उसको एक छोटे फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कंज्यूमर, जो नॉर्मल हाउस होल्डिंग कंज्यूमर्स होते हैं, उनको सप्लाई देनी है, ठीक है। क्लियर है ये पर्पस? ये एसी के लिए यूज़ होता है, डीसी के लिए नहीं यूज़ होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। डीसी के लिए हमें किसी भी तरीके के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है। DC is already a very safe current. AC is comparatively dangerous. आपको ये मैंने AC और DC का जब टॉपिक बताया था तो बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC एंड विच इज़ मोर डेंजरस। तो 311 वोल्ट AC की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू DC, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसमें हम एक लैमिनेटेड लूप लेते हैं। इसके पीछे पर्पस जो होता है वो हिस्टेरिसिस वगैरह को रोकना होता है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस हैं। तो इस तरीके की लैमिनेटेड कोर होती है और ऐसी ही लेयरिंग चलती जाती है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके की लेयरिंग लेते हैं, एक फिक्स्ड गैप लेते हैं, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ लेनी होती है, इस लेयरिंग की फिक्स्ड इस लेंथ की विड्थ लेनी होती है, और ये आयरन कोर होती है। दिस इज़ कॉल्ड कोर, दिस वन इज़ आयरन कोर, ठीक है। इसमें जो गैप रखा जाता है, एक साइड में हम प्राइमरी कॉइल लगाते हैं जो कि पावर सप्लाई से अटैच्ड होती है। इनपुट पावर सप्लाई हम इसे कहेंगे, इनपुट पावर सप्लाई, and this coil is called primary coil. The number of turns in this coil वो हम अभी चलो साथ ही साथ लेते चलेंगे, और इसी के साथ में हम नेक्स्ट coil लगाते हैं which is called the secondary coil। यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा, तो दिस वन इज आउटपुट पावर सप्लाई। यही आउटपुट को आपके घरों में भेज दिया जाएगा। दिस कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो ये कुछ ट्रांसफार्मर का एक एरे होता है। एरे मीन्स क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। एक्चुअल ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा लगे होते हैं घरों के किसी भी लोकेलिटी के साथ में एक ट्रांसफार्मर ज़रूर अटैच्ड होता है, वो आप देखोगे। दिस वन इज़ द एरे डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, यही आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे इनपुट में हाई वोल्टेज, अगर इनपुट में हाई वोल्टेज सप्लाई आ रही है तो उसको वो आउटपुट में यानी सेकेंडरी कॉइल में लो वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी। उसी तरीके से अगर इनपुट में लो वोल्टेज सप्लाई आ रही है तो आउटपुट में उसको हाई वोल्टेज सप्लाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इट इज़ अ डिवाइस टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज सप्लाई, एसी सप्लाई। क्लियर? तो ये ट्रांसफार्मर है। अब इसमें आप देखो किस तरीके से होता है। अगर हम ये मान के चलें कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 1, दैट इफ नो फ्लक्स लॉस, रिमेंबर दिस पॉइंट, यानी कि नो फ्लक्स लिंकेज लॉस, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लक्स दोनों साइड में सेम होगा, यानी कि इनपुट में जो वोल्टेज है वो आउटपुट में वोल्टेज के इक्विवेलेंट आएगा। दैट मीन्स आप ये देखो, तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज यानी आप ई पी रख दो, ई पी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाई पी डिवाइडेड बाई डी टी, फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल
डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। इसमें हम एन भी लगा सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एन पी मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आप फ्लक्स जानते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करते हैं, मोर नंबर ऑफ टर्न्स मोर फ्लक्स लिंकेज, तो ये एन पी डी पी हो गया। और ई एस को हम कैसे लिखेंगे, ई एस दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन एस। एन एस मीन्स वॉट, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एस मीन्स सेकेंडरी, एन मीन्स नंबर ऑफ वॉट टर्न्स। ये जैसे इसमें 1 2 3 4 टर्न्स हैं, ठीक है। तो दिस इज डी फाई एस डिवाइडेड बाई डी टी, ये हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लगाई हुई, इफ़ नो फ्लक्स लॉस, यानी कि अगर प्राइमरी से जो अ करंट कैरिंग कॉइल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, दिस इज अ ऑर्स्टेड प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा वो इस तरीके से जनरेट हो रहा होगा, बताइए ऐसे। अगर ये एयर में कोई इसका लॉस नहीं हुआ, सारे के सारे जितने फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं सब के सब सेकेंडरी में आ रहे हैं, तो फ्लक्स लॉस नहीं है। अगर फ्लक्स लॉस होगा तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे, यानी कि ये दोनों फ्लक्स सेम नहीं आएंगे। आ रही बात समझ में। फाई पी दैट शुड नॉट बी इक्वल टू फाई एस, चेंज इन primary flux, primary coil flux should not be equal to change in secondary coil flux. So that is why we have put the condition that there is no flux loss. ठीक है, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन ऐसी बनानी पड़ती है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप लिखोगे कि डी फाई पी शुड बी इक्वल टू डी फाई एस फॉर द सेम टाइम पीरियड। ये दोनों सेम है, तो इस बेसिस पर अगर ये दोनों सेम है तो आपका रिजल्टेंट किस तरीके से निकल करके आता है, दैट ई पी ओवर एन पी दैट शुड बी इक्वल टू ई एस ओवर एन एस। यही आएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप रेशियो निकाल करके देख लो, यहाँ पे ऐसे रेशियो निकालो, डिवाइड करो, तो ई पी ओवर ई एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस, ई पी ओवर ई एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस। यहीं से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसको ऐसे लिख लो, ई पी ओवर ई एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस। क्लियर है ये बात। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ईएमएफ को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो ईएमएफ अक्रॉस द प्राइमरी टू द ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी शुड बी इक्वल टू फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी टू द फ्लक्स अक्रॉस द सेकेंडरी। यानी वोल्टेज अगर हमें बढ़ाना है, यहाँ पे हाई वोल्टेज था, हाई वोल्टेज इन प्राइमरी, तो हाई वोल्टेज का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर ग्रेटर, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज। लो वोल्टेज इन सेकेंडरी मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज़ लो, तो यहाँ पर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। तो अगर आप देखते हो, आपसे ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी में कम दिए हुए हैं, तो ये क्या है कि यहाँ पर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। और उसी तरीके से अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये आप पिक्चर देख के पहचान सकते हो, ठीक है। तो यू कैन आइडेंटिफाई एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर। सो greater the number of turns in secondary means it is the low voltage supply to high voltage supply, conversion of low voltage supply to high voltage supply, इसको नोट कर लो। and lesser number of turns in secondary compared to primary means that the high voltage supply is converted into low voltage supply। अब इसको मैं क्यों बार बार बता रही हूँ, इसका भी एक resemblance है, and that resemblance is corresponding to, remember this, इसको लिख लो, step up ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मर, ये दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ये जो डेफिनेशन लिखी है, स्टेप अप, स्टेप जो है आप ऐसे इसको रिकॉल कर सकते हो, स्टेप इज कोरस्पॉन्डिंग टू द वोल्टेज। अगर वोल्टेज अप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अगर वोल्टेज कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। सिंपल सा मीनिंग ये है कि स्टेप अप का मतलब है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। यानी जब ट्रांसफॉर्मर, ऐसा ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जा रहा है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। और इसके लिए हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सेम रेशियो में आते हैं, तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। इसका मतलब अगर आप देख रहे हो कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ई पी ओवर ई एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस, ठीक है। तो एस यहाँ पे देखो, वोल्टेज इज कोरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स,
तो इसका मीनिंग सिंपली ये निकल के आ रहा है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर सेकेंडरी में ग्रेटर है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी में कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप वो ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है। करंट के लिए इसका ऑपोजिट कहेंगे, लो वोल्टेज का मतलब हाई करंट टू हाई वोल्टेज का मतलब लो करंट, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट टू हाई वोल्टेज लो करंट AC सप्लाई, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट टू लो वोल्टेज हाई करंट AC सप्लाई। क्लियर? इसको लिखते जाओ, अच्छे से समझ में आएगा फिर। तो स्टेप का मीनिंग वोल्टेज से लेंगे, वोल्टेज बढ़ रहा है सेकेंडरी में तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और बढ़ेगा तब जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एज शोन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स एज वेल एज द वोल्टेज इन सेकेंडरी कंपेयर टू प्राइमरी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? You can ask in comment box and I will give you a response. So this one is the condition number 1. Point is clear to you? Now अब देखो इस condition number 2 हम ये ले रहे हैं कि यहाँ जो प्राइमरी में एनर्जी जनरेट हो रही है, प्राइमरी में जो भी एनर्जी आ रही है दैट इज़ टोटली ट्रांसफ़र टू द सेकेंडरी कॉइल, यानी एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले क्या था, फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हो रहा है। सेकेंड केस हम ले रहे हैं नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है तो क्या होगा, दिस इज़ कंडीशन नंबर 2, यानी वट एवर बी द एनर्जी इन द प्राइमरी कॉइल दैट इज़ टोटली कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी इन सेकेंडरी कॉइल। सो वी कैन राइट इट एज एनर्जी इन प्राइमरी शुड बी इक्वल टू एनर्जी इन सेकेंडरी कॉइल। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो पावर इन प्राइमरी एंड हेयर पावर इन सेकेंडरी इंटू टाइम, टाइम दोनों में सेम लग रहा है क्योंकि जैसे ही प्राइमरी में सप्लाई आएगी तुरंत सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होगी। तो देयर इज़ नो टाइम लॉस, टाइम का तो कोई लॉस नहीं होता, टाइम इज़ यूनिक क्वांटिटी। सो हेयर पावर सप्लाई इन प्राइमरी शुड बी इक्वल टू पावर सप्लाई इन सेकेंडरी। ये एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। सो VP IP इज़ इक्वल टू VS IS, ये कंडीशन हो जाएगी। नाउ VP ये जो ये आपका ये EMF आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वोल्टेज। तो VP को आप लिख सकते हो EP IP दैट इज़ इक्वल टू ES IS, दैट मीन्स ES ओवर EP। अगर आप यहाँ से रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, IP ओवर IS। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स व्हाट कि ये जो EMF है इसको हम वोल्टेज के फॉर्म में भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो VS ओवर VP विच इज़ अ वोल्टेज। तो ये आपके क्या है कि दीज आर इक्विलेंट। तो यहाँ पे देखो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, दैट मीन्स प्राइमरी ओवर सेकेंडरी करेंट दैट शुड बी इक्वल टू सेकेंडरी ओवर प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, अब आप इन जो दो रिलेशंस निकल कर के आए इनको आपस में कंबाइन करो तो आपके रिजल्ट्स ये निकल के आते हैं, VS ओवर VP शुड बी इक्वल टू NS ओवर NP शुड बी इक्वल टू IP ओवर IS। ठीक है, ये तीन रिजल्ट निकल के आ गए। ये जो रेशियोज़ आ रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के प्राइमरी और सेकेंडरी के, इन रेशियो को हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं एंड दैट नेम इज़ R। दिस इज़ नॉट रेजिस्टेंस, R होता क्या है, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। दिस इज़ R विच इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसकी वैल्यू होती है VS ओवर VP विच इज़ इक्वल टू NS ओवर NP इज इक्वल टू IP ओवर IS। व्हाट इज़ VS, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, VP वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स in coil across secondary, number of turns in coil across primary, current across primary over current across secondary। इसीलिए current जो यहाँ पे डेफिनेशन में आ रहा था ना, जब हम कह रहे हैं हाई वोल्टेज तो वहाँ पे लो करंट आ रही है, हाई यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। अगर हम हाई वोल्टेज इन सेकेंडरी कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी की करंट कम हो जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए डेफिनेशन में ही ऑलरेडी यहाँ पर जो न्यूटन में दिया हुआ है वो यही रेफरेंस के बेसिस पे दिया गया है कि हाई वोल्टेज मीन्स क्या होता है, लो करंट, क्योंकि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। आपने अभी दो कंडीशन में दो डिफरेंट टर्म्स पढ़ लिए, एक तो फर्स्ट कंडीशन फ्लक्स की थी, सेकेंड कंडीशन एनर्जी लॉस की।
तो इन दोनों ही कंडीशन में आपने दो डिफरेंट न्यू टर्म्स पढ़े हैं. फर्स्ट टर्म इज़ द स्टेप अप टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और दूसरी कंडीशन में आपने पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है. तो ये जो क्वेश्चन है ना ये आता है, एंड बिकॉज इट इज़ अ रेशियो इट हैज़ नो यूनिट, रिमेंबर दिस पॉइंट. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इस तरीके के निकल के आते हैं. क्लियर है ये पॉइंट. तो ये ओवरऑल ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन है, उसकी फंक्शनिंग और कंडीशंस हैं, और उससे रिलेटेड टर्म्स हैं जो मैंने 3 टर्म्स बताए हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर and the transformation ratio. These 3 terms are most important regarding this topic. Okay, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना. अब बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से लॉसेस होते हैं. ठीक है, एक तो आपका मैंने बताया कि नो एनर्जी हम कंडीशन ले करके चल रहे हैं लेकिन होता है एनर्जी लॉस. नो फ्लक्स लॉस ले करके चले लेकिन फ्लक्स लॉस होता है, एयर के थ्रू फ्लक्स लॉस होता है. यानी ट्रांसफार्मर इज़ नॉट द 100% एफिशिएंट डिवाइस. एक्चुअली बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नो डिवाइस इज़ 100% एफिशिएंट. यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनपुट की सप्लाई, इनपुट की एनर्जी टोटली 100% आउटपुट में आ जाए. ठीक है, कहीं ना कहीं लॉसेज होते हैं बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट लॉसेज लाइक द फ्लक्स लॉस, एनर्जी लॉस, लाइक दैट मैनर. यहाँ पर क्या होता है कि लॉसेज होते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर अगेन इट इज़ नॉट द 100% एफिशिएंट डिवाइस. 100% एफिशिएंट वो डिवाइस होती है जिसका आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल हो जाता है, तो वो 100% एफिशिएंट डिवाइस हो जाती है. ठीक है, अब ये तो आपको बात समझ में आ गई. लॉसेस किस तरीके के होते हैं, जैसे एडी करंट लॉस होता है. ठीक है, फ्लक्स लिंकेज लॉस होता है, यहाँ से कुछ फ्लक्स बाहर निकल जाते हैं, एयर में चले जाते हैं, तो फ्लक्स लॉस हो रहा है. एडी करंट लॉस क्या होता है, यहाँ पे जो ये लैमिनेटेड कोर्स बनाई जाती हैं इनके बीच में एडी करंट जनरेट हो जाती है जो एक्चुअल करंट को अपोज कर रही होती है, एडी करंट लॉस होता है. क्लियर. उसके बाद हिस्टेरिसिस लॉस होता है. हिस्टेरिसिस क्यों, क्योंकि ये जो आयरन पीस है ना ये करंट के इफेक्ट में मैग्नेटाइज्ड होगा. जब मैग्नेटाइज्ड होगा तो हिस्टेरिसिस लॉस होगा. हिस्टेरिसिस भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है. किस चैप्टर में, किस चैप्टर में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आपने 3 काइंड के मटेरियल डाया, पैरा एंड फेरो पढ़े थे. उसमें आपका हिस्टेरिसिस भी लास्ट में एक टॉपिक आया था. अगेन गो टू द प्लेलिस्ट. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो टॉपिक आपकी इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. उसमें से आप देख लेना कि व्हाट इज़ हिस्टेरिसिस. ठीक है, कोएर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी आर द टर्म्स रिलेटेड टू इट, यू कैन गो थ्रू विद दैट. तो हिस्टेरिसिस लॉस होता है यहाँ पर. तो 3 काइंड के लॉस हो गए. एनर्जी लॉस हो रहा है, 100% एफिशिएंट नहीं है. सेकेंड, एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट की वजह से यहाँ पर एक्चुअल करंट में लॉस हो रहा होता है. थर्ड, आपका फ्लक्स लॉस हो रहा होता है. फोर्थ, आपका हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा होता है. तो ये 4 काइंड के लॉसेस ट्रांसफार्मर में हो रहे होते हैं. दैट इज़ वाई ट्रांसफार्मर इज़ नॉट 100% एफिशिएंट डिवाइस. तो जितनी डिटेल मैंने आपको इसमें बतानी थी आई थिंक कि मैंने सारी कवर अप कर ली हैं. कुछ एक अगर रह गई होंगी तो मुझे तो वैसे नहीं लगता कि रह गई हैं, बट अगर हाँ येस इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक ट्रांसफार्मर, you can just tell me in comment box. I will revise that topic, I will just cover up that topic, but till that time my suggestion, my expectation to you is to revise whole chapter at once. Okay, so thank you for today. Tomorrow I will come with electromagnetic wave, the last chapter of this NCERT book, last unit of this NCERT first book. उसके बाद जो सेकेंड बुक है वो हार्डली ये जो आपका नवंबर मंथ है, मुझे नहीं लगता कि नवंबर भी पूरा लगेगा. उसमें आपको मैं आपको मिड ऑफ द नवंबर में गारंटी देती हूँ कि मिड ऑफ द नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट होगा, सारे टॉपिक कवर होंगे. ठीक है, तो जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री के लिए, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है. क्योंकि जब तक आपको एक बेस नहीं क्लियर होता तब तक आप एडवांस लेवल पे कैसे जाओगे. तो पहले तो आप बेस क्लियर करो, ये 2 मंथ लगा लो. फेब में जनवरी में होता है, जनवरी में एग्ज़ाम्स, या तो फेब में एग्ज़ाम होगा आपका प्री का. तो जो भी सिचुएशन होगी कोरोना के बेसिस पर वो डिसाइड हो जाएगा. तो जो भी सिचुएशन है आपका, बट आपको नवंबर तक एटलीस्ट अपने सिलेबस से गो थ्रू हो, फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ. तो सेम क्राइटेरिया फॉर द Z and NEET aspirant and the same criteria for the board examination aspirant. Okay, so I hope you will revise all the syllabus and you will cover all the topic from the playlist given in my channel. So thank you for today, and next I will come with electromagnetic wave, which is of 3 numbers in board examination. 3 marks का आता है ये, and
Yes, you will get the concept of electromagnetic wave very clearly.